Good morning, students. Today I am going to again continue your poem on Jennifer's Tiger. Yesterday we have just gone to the first stanza and the explanation. Once again, I am going to explain you the first stanza and then I am going to continue to the second stanza again. In this first stanza, the poet is talking about a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. She is embroidering a piece of cloth. It would be a tablecloth or a wall hanging, anything it would be. The pattern shows tigers who are moving and jumping around all over the fabric. What she draws or engraved on it is showing a tiger which is moving or jumping around over the fabric. They are bright yellow in color, like the color of topaz stone, used as a metaphor here. Topaz word is used for the metaphor comparison. The dense green forest background is their home. The forest is their home. They are the proud and fearless citizens of the forest. The tigers have been proved here that they are fearless and they are proud to move freely in that forest. Here is the contrast between Aunt Jennifer and her tigers. The tigers are fearless, but this lady who is embroidering them is not so. So this is the main thing. What it has been described here, the discrimination here is Aunt Jennifer is being compared to the fearless tigers which she has been embroidering them, were very much bold and brave. They are very free to move and do all their actions, but Aunt Jennifer was not so. She was not so free enough in her own works. Now we are going to read it in the next paragraph, what the poet wants to say. Second stanza. Aunt Jennifer's tiger, fluttering through her wool, find even the ivory needles hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band still heavily upon Aunt Jennifer's hand. Here the explanation for this stanza. The lady's fingers are trembling with the fear of her husband. Now यहाँ पे क्या हो रहा है इस पोइट्री में, यहाँ पे वो लेडी जो है आंट जेनिफर, जिनको नाम दिया है यहाँ पे पोइट ने, वो एक पीस ऑफ वॉल पीस बना रही है या क्लॉथ पे फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी करी, कुछ क्लियर नहीं है, मगर जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो वो क्या कर रही हैं, जब वो अपने हाथों से उसे बना रही हैं तो उसके हाथ जो हैं वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, धूज रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरी हुई है. फियर ऑफ हर हस्बैंड. शी इज़ pursuing her hobby in a free time, but probably she is still afraid of her husband who could scold her. वो अपने हॉबी को, अपनी शौक को पूरा कर रही है उसके लीजर टाइम पे, उसके फ्री टाइम में, घर के कामों के बाद जब वो समय मिला है उसे वो यूटिलाइज कर रही है अपने शौक को पूरा करने के लिए. उस समय भी उसके मन में अपने पति का डर है. वो डर है कि कहीं वो उसे डांटेंगे कि वो क्या कर रही हैं, तो उसके हाथ उस समय धूज रहे थे. हर फिंगर्स आर सो टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेस एट ऑल हर लाइफ. उसके हाथ जो दिख रहे हैं वो ऐसे थके हुए दिख रहे हैं कि हमेशा पूरे जीवन वो एंडलेसली अपनी फैमिली के लिए काम करती रही, अपनी इच्छाओं को कभी शायद उसने पूरा नहीं किया है. द नीडल इज़ ऑल्सो हैवी फॉर हर टू पुल आउट ऑफ द क्लोथ. वो धागा भी खींचना उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ स्टेमिना अपनी लाइफ पूरी किसके लिए डेडिकेट कर दी, अपनी फैमिली के लिए, विदाउट एनी डिज़ायर उसने पूरी कर दी. द वर्ड्स अंकल्स वेडिंग बैंड, एज द बैंड वॉज बॉट बाय हर हस्बैंड, इट इज़ हिज टिल टुडे. यहाँ पे जो अंकल्स वेडिंग बैंड है, द बैंड एज बॉट बाय हर हस्बैंड, इट इज़ हिज टिल टुडे. वो जो आवाज़ है उस शादी की, जब वो उनके हस्बैंड जब वेडिंग बैंड्स लेके आते हैं, वो अभी भी गूंज रही है उसके कानों में. द लेडी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड. यहाँ पे जो लेडी है आंट जेनिफर, वो अपने हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट है. शी इज स्टिल बर्डन बाय द वेट ऑफ द रिंग. द वेट मीन्स द encirclement of the trapping that has fallen upon her by getting married to him. She has been burdened by the obligations of married life, has become the man's property. यहाँ पे वेडिंग रिंग का, वेडिंग बैंड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है. यहाँ वेडिंग बैंड, शादी की जो शहनाइयाँ बजती हैं वो गूंज हैं, वो उसके कानों में अभी तक गूंज रही हैं. वो हाथों में जो वेडिंग रिंग है वो उसके लिए वेट है. वेट क्यों है? क्योंकि वो पूरे बर्डन से, उस बोझ से तले दबी हुई है, शादी के सारे बोझ तले दबी हुई है कि सारा उसकी जिम्मेदारी है पूरे घर की देखभाल करना, सबकी देखभाल करना और अपनी इम्पोर्टेंस को बहुत एंड में पूरा करना. तो वो पूरा जो है, और वो पूरे मैन डोमिनेटेड है,
बिकमिंग, जैसे कि मान लो शादी कर ली है तो वो मैंस प्रॉपर्टी बन चुकी है. शी इज़ अंडर द मैंस हैंड एज अ रिंग मास्टर, यू कैन से. शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल द टाइम फॉर देयर ओन, फॉर अदर्स नीड. यहाँ पे ये पोइट ने ऐसे वेट वर्ड्स डाले हैं, वेडिंग बैंड्स एंड द वेट of uncle's wedding band and heavy upon the aunt Jennifer's hand. Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. पति का डर दिखाया गया है कि पति के प्रति कितना डर है उसके मन में. She says that while she is doing embroidery, her fingers are shaking with fear of her husband. Her husband doesn't approve of her hobby of embroidery. कभी भी उसके एम्ब्रॉयडरी काम में वो इतने खुश नहीं है. Therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. इसीलिए वो शायद उस समय धूज रही है, डर रही है वो अपने शौक को पूरा करते समय. It has become difficult for her to pull the needle up and down. Then she describes the wedding ring which was given by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day. She says that it is a kind of burden for her to wear this ring. She has been tortured by her husband so much that the wedding ring, which would have been a beautiful gift for her, seems like a burden to her. वो इतनी खूबसूरत चीज़, शादी की जो इतनी खूबसूरत यादें हैं वो इतनी खूबसूरत रहती, मगर वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी है. क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनके द्वारा प्रताड़ित की गई हैं, उनके द्वारा इतनी दबाई गई हैं, डराई गई हैं. She has faced so many difficulties in her married life that the little ring is described as a heavy band on her trembling fingers. एक पूरे बैंड की तरह उस रिंग को डिस्क्राइब किया गया है, इतना बोझ उस रिंग के ऊपर डाला गया है. क्यों? इतनी ज़्यादा वो अपने हस्बैंड के द्वारा डराई गई हैं. It seems that the ring is associated with some bad experiences in the form of torture as she has faced because of her husband's dominating behavior. इतनी ज़्यादा उनकी प्रताड़नाओं को सहने के कारण, उनके पति की प्रताड़नाओं को सहने के कारण वो जो वेडिंग रिंग जो इतनी खूबसूरत याद है उसे वो एक बोझ की तरह, वेट की तरह उसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है स्टैंजा में. यहाँ पर राइमिंग सीन है A-A-B-B. एलिट्रेशन यूज़ हुआ है आई साउंड का, रिपीटेड इन फिंगर फ्लटरिंग. यहाँ पे हमने इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में ये देखा कि कैसे वो अपने हस्बैंड के द्वारा इतनी ज़्यादा डराई गई हैं कि जो खूबसूरत शादी की जो यादें होती हैं वो उसके लिए एक बोझ बन चुकी हैं. वो उसके हस्बैंड का जो टॉर्चर है उसे सहते सहते उनके डोमिनेटिंग बिहेवियर को देखते हुए उसे वो शादी का जो पवित्र बंधन है वो उसे बोझिल लगने लगा है. उसकी शौक उसकी इच्छाओं को भी वो शायद वो पूरा नहीं कर पा रही है उस डर के कारण, और उस शौक को पूरा करते समय भी उनके हाथ धूज रहे हैं और हाथ थके हुए भी हैं, क्योंकि एंडलेसली वो उस परिवार के लिए काम करती गई हैं बिना अपने अपनी इच्छाओं को नज़रअंदाज करते हुए. जब वो पूरा करने लगी अपनी इच्छाओं को तो तब भी वो पूरी डरी हुई ट्रेम्बलिंग यहाँ पर दिख रही है इस स्टैंजा में. हम आगे नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा इस पोइट्री का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.